pairwise 2. Now inside pairwise, there are two types of packages stored. One is what is known as a global pairwise sequence alignment, and another what is known as a local pairwise sequence alignment. Now, can anyone tell me what is the basic difference between a global sequence alignment and a local sequence alignment? और वो ग्लोबल में कंप्लीट सीक्वेंस अलाइन करते हैं और लोकल में सेगमेंट्स में लेते हैं मतलब. हाँ सही है, राइट. सो बेसिकली लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट हम लोग एक स्पेसिफिक एरिया में देखेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को हम उठा के देखेंगे कि वो अलाइंड है कि नहीं है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज बाय डिफॉल्ट व्हेन यू जस्ट इंपोर्ट योर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, वो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है. वो इट डजंट डू द लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट अनटिल एंड अनलेस यू स्पेसिफाई इट कि मेरे को लोकल अलाइनमेंट करना है. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू आर डूइंग अ लोकल अलाइनमेंट, then you have to be very specific with the sequence that you want. For example, जब हम global sequence alignment करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है कि we have just given these two nucleotide sequences and हम लोग pairwise sequence alignment को बोल रहे हैं कि just do the pairwise sequence alignment. So what this package understands is कि the user is asking me to do a global sequence alignment of these two nucleotides. So that's why it will go with the by default value, that is the global sequence alignment. When you're going to do the pairwise local sequence alignment, then you have to be really specific. तो एक step extra हो जाता है. First you have to give or define the nucleotide sequence in this way, and then you have to define BioPython saying to find the specific sequence of which you want to do the local alignment, right? So उस टाइम पे क्या होता है, उसके लिए एक और फंक्शन होगा which we will show you कि वो कैसे करते हैं. But sometimes what happens is कि in updated, I guess you guys also will face the same error, because in updated BioPython version, if you are having a BioPython version of 1.69 or 1.59 and above, you will be facing a error when you will be doing the local alignment, क्योंकि उसके लिए नए उन्होंने पैकेजेस which are still in process, और अभी भी पैकेजेस बन रहे हैं. So when you will be doing the local alignment, then it will be showing some error. I will show you what kind of error it will show you. So first we will do the global alignment. So I've stored my answer in the alignments variable. I'll first call the pairwise 2 alignment, and inside that pairwise package I have what is known as the global alignment package also. So I'll be calling that package as well. So it is I'll write align dot global xx, and then the sequences which I want to do the pairwise alignment for. So sequence 1 and sequence 2. So in this particular code, the actual work, the actual alignment is being done by the global xx. This function basically does the actual pairwise sequence alignment, and we are just calling. So to access this particular package or this particular command, we have to first access a pairwise alignment package, and then from that pairwise alignment package, we are saying, okay, do the alignment process. And once you are doing the alignment process, the actual process will be done by global xx, right? And in the argument, you have to give the sequences of which you want to do the pairwise sequence alignment. So we have defined sequence 1 and sequence 2, right? And then I can just write print alignments. That is my result. Okay. So once you run it, you'll see something like this. It does the alignment. It says alignment, then sequence A, that is ATGC dash dash ATA dash C. Then this is your sequence B, that is dash dash GC CG80, whatever it is, and it gives you a certain score. Okay, so this shows you what is the score is, the start value, the end value, and this is the alignment. So it basically does different type of alignments. So instead of printing it in this way, it's sorry. Did someone have a question? No. Okay, so instead of doing it in this way, it's better to write it in this way. Okay, just use a for loop to do it. So we'll write for align in alignments, print align. So it's better to view it in this way, because it will give you the results in ordered manner. Okay, so what this basically does is it does your pairwise sequence alignment. So it will do it multiple number of times to give you the exact results. And this you have your what is known as first sequence. This is your second sequence. This gives you the score. The start, that is, it starts at 0 and ends at 11. Now, can anyone tell me what this start and end basically? I think all of you have done multiple sequence alignment using the server, the basic servers. No, sir. No, sir. We have not reached Someone of multiple you- sequence by now.
Okay, those who are in their third year or fourth year, I guess those guys have done it in BioPython. नॉर्मल पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट तो किया होगा ना सर्वर पे. So we did it in bioinformatics. Right. So can anyone tell me what this basically like? What is the output that you get in pairwise sequence alignment? And can anyone explain me कि exact जो output हमको यहाँ मिल रहा है, like score, start and end, what this basically stands for? मैचिंग मिसमैचिंग सर. Matching सर mismatch. एक को स्कोरिंग वो देते हैं ना, मतलब डॉट मैट्रिक्स मेथड में भी एक स्कोर बनता है होमोजेनिटी का, कि कितना आइडेंटिकल है और कितना वो है उसी में तो सिमिलर. सर वो मैच मिसमैच और गैप देखते हैं, मतलब वो वही तक पता है मुझे स्कोर बस. मतलब हमें मैम ने यही बताया था कि स्कोर मिलता है एक डॉट मैट्रिक्स मेथड से भी यही मिलता था, जिसमें वो मेरे ख्याल से मल्टी डॉट करके एक प्रोग्राम है वो यूज होता है, या डॉट मल्ट करके एक यूज होता है प्रोग्राम. So उसमें basically ग्राफ ऐसा कुछ बताया होगा कि okay, but what I am asking is कि for example when जो हम लोग cluster से हम लोग जब normal multiple sequence alignment करते हैं, so there are different parameters, right? पढ़ा होगा तुमने blossom 62 matrix हम use करते हैं, and then we give a penalty score or we give a gap score, something like this, जो हम लोग pre-define रखते हैं. Like या तो हम लोग उसको by default रखेंगे जो server ने set किया हुआ है, right? We don't do any kind of changes in that, we just upload the sequence and we run the program. वो एक option होता है. सेकेंड इज कि यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट द डिफॉल्ट पैरामीटर्स, राइट? कि तुमने जो भी उसके बेसिक पैरामीटर्स है सर्वर पे उसको हम चेंज कर देते हैं कि लेट्स से मेरे को ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स नहीं चाहिए, मेरे को कोई दूसरा मैट्रिक्स चाहिए, या फिर मुझे कोई दूसरा गैप पेनल्टी स्कोर चाहिए या कोई दूसरा पेनल्टी स्कोर चाहिए, राइट? तो वो तुम चेंजेस कर सकते हो. बट आई वांट इज कि यहाँ पे यू आर सीइंग, ओके लेट्स कंसीडर द फर्स्ट रिजल्ट ओनली हियर. Just notice this particular strand and this particular strand. Okay, can anyone tell me किस तरीके से ये पेयर वाइज हो रहे हैं, मतलब अलाइनमेंट किस तरीके से इनका हो रहा है बेसिकली? वो कोई दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? आई थिंक ये अलाइनमेंट बेसिकली कैसे हो रहा है, लाइक हाउ कैन आई इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट? लेट्स से मेरे को पेयर वाइज अलाइनमेंट के बारे में कुछ नहीं आता है, आई डिड द पेयर वाइज अलाइनमेंट, मेरे को ये आउटपुट मिलता है. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि ये आउटपुट को मैं किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ? तो जो सीक्वेंस ए का ATGC है, उसमें GC जो पार्ट है उस पे सीक्वेंस B का GC जो है उसको पेयर कर रहा है वो. वापस एक बार रिपीट करना. सर जैसे सीक्वेंस ए में ATGC चल रहा है, तो उसमें सीक्वेंस B का जो स्टार्टिंग है वो GC से है, तो उसने सीक्वेंस A से कंपेयर करने के लिए जहाँ पे सीक्वेंस A में GC से स्टार्ट हो रहा है उसने वहां से उसको पुट कर दिया सीक्वेंस B को. ओके. तो वो पेयर वाइज होती है ना, पेयर वाइज में दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लेते हैं, जहां से फर्स्ट मैच होता है वो वहां से पेयर करता है उसको. बेसिकली वो पेयर पर्टिकुलर एक एक न्यूक्लियोटाइड को पेयर करता है कि ये मैच हो रहे हैं दोनों DNA सीक्वेंसेस में से. करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही. सो बेसिकली वो क्या करेगा कि जहां पे उसको वो न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है वहां पे उसको मैच कर देगा उसके नीचे, राइट? एंड जहां नहीं मिल रहा है वहां पे वो डैश पुट कर देगा बेसिकली. हाँ करेक्ट. So that is what we are observing here as well in these two sequences. Okay. Now this thing is clear. Second thing is कि ये score basically क्या score है, and this start and end basically. सर स्कोर 5 का मतलब ये तो नहीं कि मतलब 5 पेयर सिमिलर हैं, मतलब मैच करते हैं? 5 पेयर मैच कर रहे हैं, मतलब okay. 5 कहीं मैच करते हो? देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे G से G मैच किया, C से C मैच किया, ठीक है.
देन ये तो मैच कर नहीं रहा, लाइक दिस इज नॉट मैचिंग, यहाँ से इसने मैच किया, इसने मैच किया, ए जी के साथ नहीं करेगा, देन टी भी इसके साथ नहीं करेगा, इस ए के साथ ये ए मैच कर गया, एंड सी के साथ सी मैच किया, तो बेसिकली यहाँ पे तो फिर हमको 4 मिल रहे हैं अगर वो मैचिंग कर रहा है तो, और वहाँ पे तो उसने 5 लिखा हुआ है। तो सर Sir, वो गैप does it? से मतलब गैप का भी काउंट लेते हैं ना, फिर मिसमैच का -1 2 3 मतलब वो जो भी रहता है फिर, और इसका +1 2 3 और फिर गैप का कुछ और लेते हैं। हाँ Correct. So you see, basically you guys know, it just you have to brush up a little on these things, right? Because I guess you guys, I don't think तुम्हें इसके पीछे का एल्गोरिथम पढ़ाया होगा, लाइक नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम इज देयर। हमें स्कोर पार्ट भी नहीं पढ़ाया अभी तक। सर हमें ये सब नहीं पढ़ाया। इंटरनेट से पढ़ा है। हाँ सर, ये अच्छा, सब सर तो सूची में नहीं लेती है ना तुम्हारा? इप्सा में। Nemare, Okay, sir. okay. So I think that is the major core of your any kind of alignment, right? जो algorithms होते हैं, like the Needleman-Wunsch algorithm is there, then your hidden Markov matrix Hidden method is there. Markovnikov, yes sir. वही, so वो सारे algorithms basically are the core behind your any kind of alignment. That तो is सर, what is actually ये हिडन मार्कोनिकॉफ वगैरह जो ये सब है, ये सब तो फिर वो मशीन लर्निंग वगैरह के एल्गोरिथम है ना, तो मतलब वो हमें कैसे पता? so नहीं, hidden Markov, so first is Markov, Markovnikov नहीं, Markovnikov is the chemistry one, जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे, मार्कोनिकॉफ। हाँ, मार्कोनिकॉफ पता है, वो एक वेरिएबल मतलब दूसरे पर अनऑब्जर्वेबल, वो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, मतलब हिडन मार्कोनिकॉफ। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जो हम लोग HMM मॉडल पढ़ते हैं ना, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली टू मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं होता है, उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई से भी प्रॉपर्टी वेरिएबल और जिसका एक मतलब एक ऑब्जर्व हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। बेसिकली जैसे मार्कोव, जो हिडन मार्कोव मॉडल है, दैट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट इज नोन एज अ मार्कोवियन मैट्रिक्स। तो एक मार्कोवियन मैट्रिक्स इज अ बिगर अम्ब्रेला अंडर व्हिच डिफरेंट एल्गोरिथम्स आर देयर, ठीक है? तो बेसिकली मार्कोव मॉडल क्या करता है, मार्कोव मॉडल इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्रोबेबिलिटीज, कि वो किस तरीके से प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट हमको देता है, राइट? दिस थिंग यू विल बी, आई गेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, बायोस्टैट्स में प्रोबेबिलिटीज वहां पढ़ोगे, न्यूटोनियन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम में पढ़ा होगा, मिक्सिंग मल्टीपल थ्योरम पढ़ा था, मल्टीप्लिटी। तो वहां पे बेसिकली आई डोंट थिंक अपने कॉलेज में ये पढ़ाया होगा। सो बेसिकली क्या होता है कि यू हैव अ सर्टेन एल्गोरिथम्स, राइट? जैसे के ट्यूपल मेथड होता है, देन योर मार्कोव मॉडल इज देयर, गिलेस्पी एल्गोरिथम्स आर देयर। सो बेसिकली दीस एल्गोरिथम्स आर डिजाइंड टू स्पीड अप द प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इसको बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से अगर आई डोंट हैव एनी एल्गोरिथम, हां Was someone asking something? No sir. So let's say कि मेरे पास कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है, एंड तुमने मुझे 2 सीक्वेंस दिए और बोला भाई इसका अलाइनमेंट करके दो। सो द वेरी बेसिक थिंग आई कैन डू इज कि मैं दोनों सीक्वेंसेस के इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके देखूंगा, ठीक है, एंड देन उसको बाय हैंड अलाइन करूंगा कि ये जी इस जी के नीचे आना चाहिए, ये सी सी के नीचे आना चाहिए, यहाँ पे डैश होगा, यहाँ पे गैप होगा, राइट? सो बाय हैंड क्या हो जाएगा, बहुत ही टीडियस जॉब है। So to optimize that process, what I can do is I can create an algorithm that will do the same thing, बस थोड़ा speed में करेगा वो, right? तो to create an algorithm, मेरे पीछे क्या चाहिए? To create an algorithm, I need a basic idea और logic कि वो process होगा किस तरीके से, right? तभी मैं उस algorithm को create कर सकता हूँ। नहीं तो algorithm create करने का कोई sense नहीं बनता है, क्योंकि जब भी हम किसी algorithm को create करते हैं, एक basic logic होना चाहिए behind that कि ये काम करेगा किस तरीके से, राइट? सो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है कि मैं ऐसे लॉजिक देख सकता हूँ कि फर्स्ट लॉजिक विल बी कि आई विल अलाइन ओनली दोज न्यूक्लियोटाइड्स जो मैच करते हो। तो वो मेरा पहला कंडीशन हो जाएगा कि अगर न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहा है तो उसके नीचे अलाइन करो उसको, जो हम बेसिकली इफ लूप या फॉर लूप में यूज करते हैं, जो हम लोग कंडीशंस यूज करते हैं, जो लॉजिक बिहाइंड यूज करते हैं, राइट? सो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स क्रिएट करते हैं। नाउ दीज एल्गोरिथम्स नीड नॉट बी स्पेसिफिक फॉर योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता कि बाय इन्फो में ही ये तुमको एल्गोरिथम दिखेगा और कहीं दिखेगा, या मशीन लर्निंग में दिखेगा और कहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। These algorithms are universal, ये तुम्हें कहीं पे भी दिख सकता है। It's just a process by which you can optimize a specific process, जो time taking process है उसको तुम optimize कर सकते हो। For example, जो हम K tuple method इसमें देखते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, वो K tuple method तुम्हारा इसमें भी आता है, मशीन लर्निंग में भी आता है।
सिमिलरली जो रिग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो रिग्रेशन हमारा मशीन लर्निंग में भी आता है, राइट? जो लीनियर रिग्रेशन हो गया या कंपाउंड रिग्रेशन हो गए, ये सारी चीज मशीन लर्निंग में भी आते हैं. सो दिस इज बेसिकली कि एल्गोरिदम जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस. प्रोसेस तुम समझ जाओगे, या जो आउटपुट तुम्हारे पास रिजल्ट आ रहा है वो तो तुम इंटरप्रेट कर लोगे कि बेसिकली यहाँ पे इसने अलाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इसने गैप डाल दिया है, ये गैप स्कोर हमने इतना रखा था और ये टोटल स्कोर है, इसमें से इतने स्कोर को माइनस करेंगे, दिस विल बी आवर फाइनल स्कोर, जो हमारा अलाइनमेंट का स्कोर आएगा, राइट? वो तो ईजी है. द मेन थिंग इज कि वो एल्गोरिदम काम किस तरीके से कर रहा है, दैट इज व्हाट यू गाइस नीड टू नो behind any kind of an bioinformatic process. या कोई भी अलाइनमेंट जो प्रोसेस चलता है उसके पीछे ये आइडिया तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए कि वो अलाइनमेंट काम कर किस तरीके से रहा है या एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है. फॉर दैट यू कैन आस्क योर टीचर्स. आई डोंट थिंक वो तुम्हें बताएंगे, बट यू कैन एक्चुअली आस्क देम कि मैम अगर आप एल्गोरिदम समझा सकते हैं अच्छे से तो इट विल बी रियली गुड. वो एल्गोरिदम बेसिकली काम कैसे कर रहा है, राइट? बिकॉज एक बार अगर तुम्हें एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा देन इट विल बी रियली इजी टू डू एनी काइंड ऑफ अलाइनमेंट. कोई भी n नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स तुम कर सकते हो अगर तुम्हें एल्गोरिदम समझ में आ गया. एंड एवरी एल्गोरिदम जो होता है ना, हर एक एल्गोरिदम देखना कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होता है. इज जस्ट एक दो स्टेप्स में ना किसी ने उसको ऐसा मॉडिफाई किया है कि वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया है. दैट्स इट, वही डिफरेंस है. मेजॉरिटी एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही काम करते हैं, एक दो स्टेप्स खाली उसमें अलग होंगे, राइट? सो यू कैन आस्क इप्सा मैम कि अगर तुम्हें एल्गोरिदम को पढ़ा सकती हैं तो लाइक इन डेप्थ कि वो एल्गोरिदम बेसिकली काम कैसे कर रहा है, तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट? So ये था basically हमारा pairwise sequence alignment in which you will be getting multiple number of results, and then also what you guys can do is कि that will be a good activity as well. Take any two sequences from NCBI, download it. एक pairwise sequence alignment run it from BioPython, एक pairwise sequence alignment run it from the online server, and this is compare both the results. कि results कैसे आ रहे हैं, कोई difference है क्या results में, कैसे आ रहे हैं. That will be a good thing what you guys can do. Okay. So उससे बेसिकली तुमको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से वो चीज हो रही है. नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग इसमें क्या होता है इन पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट. सो दिस वाज व्हाइल यूजिंग द पेयरवाइज 2 पैकेज. समटाइम्स पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट आल्सो गिव यू अनदर मॉड्यूल which will actually contain all the basic details about the sequence alignment process कि क्या चीज उसमें क्या क्या चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं. So for that, what you can do is that particular package is known as align package. So just a sec, I'll import it here. What you can do is you will write from bio import align. Okay, be very much clear again here with the alphabets, like the capitalization. A will be capital here. Okay, and in pairwise it was small. Okay, so be very much clear with that. Align, and then let's say मैंने कोई भी variable define कर दिया a in which I'm storing this. So I'll call my align function. I'll say align and dot pairwise aligner, and then I can just print my value जिसमें मैंने उसको store किया, right? So what this will give me is this will give me these things. So what these things represent is कि जो हम लोग align package use कर रहे हैं, and from that align package we are calling the pairwise aligner. So this pairwise aligner has these default values. ये सारे उसके default values है कि अगर match होता है तो वो उसको value 1 देगा, अगर mismatch हो रहा है तो उसका score 0 रहेगा. And then these are the different kind of parameters जो pairwise aligner में है, like target internal open gap score, extend gap score, whatever it is, like open left extend, right open right extend, query score क्या होते हैं, and this mode. So basically when you are doing a pairwise aligner, the default value is global value. So basically by default it is using a global alignment. It is not doing the local sequence alignment, it is doing a global sequence alignment. So in this way you can check the align package ke, and then accordingly you can change those values and do whatever alignment you want to do, right? So एक ये तरीका हो गया align करने का. दूसरा तरीका है कि directly तुम pairwise 2 package को import करके alignment कर दो, right? That is another way to do a pairwise sequence alignment. Third thing is we can do a cluster W alignment. Now what cluster W, for cluster W what you guys need to do is again open your browser and go to this website. Go to this specific website
ओके यहाँ पे क्या है कि जो भी करंट मॉडल्स हैं हमारे क्लस्टर W पैकेज के वो स्टोर्ड हैं. आई वुड रिकमेंड कि ये क्लस्टर 2.1 जिसका विंडोज है वो विंडोज वाला डाउनलोड करना 2.1 डैश विन. जिसका मैकबुक है वो मैक ओएस कर सकता है. इसका लिनक्स है वो लिनक्स कर लो. ठीक है. तो यहाँ से फॉर दोज हु आर हैविंग विंडोज जस्ट ट्राई टू डाउनलोड द लास्ट, जस्ट सी लास्ट मॉडिफाइड कौन सा है. सो द बॉटम वंस आर द लेटेस्ट मॉडिफाइड आई गेस. सो यू गाइस कैन डू दैट. वो डाउनलोड मार सकते हो. ठीक है. और आई थिंक यही होना चाहिए आई गेस. लेटेस्ट this is 13th Jan and this is 2011. So basically download this one for Windows 1. Use Mega X. हाँ, you can use Mega X as well. Mega X भी बहुत सही है. But I don't think कि उसको college में I don't think it's in your syllabus to do the Mega X. But otherwise, if you want to do Mega X, that is very good software to do any kind of like phylogenetic analysis या जो भी तुम्हें analysis करना है. Mega X really good. बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी. यू कैन डू दैट एज वेल. लेकिन आई डोंट थिंक स्कूल लाइक कॉलेज में तुम्हें वो सिखाया होगा. मेगा सिखाया गया किसी ने प्रैक्टिकल्स में मेगा एक्स? नो सर, मैंने पहली बार सुना है नाम. नहीं तो मेगा सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली रियली गुड सॉफ्टवेयर. बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेगा. इफ यू वांट यू कैन लाइक गो टू द ट्यूटोरियल्स. वहां पे देख सकते हो क्योंकि उसमें इट प्रोवाइड्स यू एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ओके. So, but for now we will be using on BioPython. So just download for Windows. Just download this one. Once you download it, you can save it anywhere. But the important thing that you guys to do is कि जब एक बार तुम cluster download करोगे, does anyone know कि path को किस तरीके से update करते हैं? Your virtual environment, how to update that? Okay. सब So what you प्रॉपर्टीज में guys जाके can फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हैं मतलब. हाँ, so basically just go to this PC. वहाँ पे जो properties में तुम जाओगे and then from properties just go to advanced system settings and then वहाँ से you can change the path. जो तुम्हारा path है ना, ये environment variables में जाओगे and in this environment variables you have two variables. Like one is the user variable, one is system variable. So basically user variable is specific to the user जो particular में. For example अगर तुम्हारे laptop में 3 users हैं तो वो specifically उसी user के लिए होगा. What I would recommend is कि do the path update in the system variables क्योंकि वो फिर तुम्हारे system में आ जाएगा. तुम्हें बार बार करने की जरूरत नहीं है. राइट. सिस्टम में तुम जाके वहाँ पे अपने पाथ वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो जो तुम्हारा क्लस्टर रहेगा बेसिकली. ठीक है. वंस यू अपडेट दैट पाथ वन एंड देन यू कैन इंपोर्ट द पैकेज. बिकॉज अगर तुम अपने पाथ को अपडेट नहीं कर रहे हो एंड देन इफ यू आर इंपोर्टिंग द पैकेज फ्रॉम पाइचार्म तो पाइचार्म उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. सो इट विल से कि ऐसा कोई पैकेज है ही नहीं क्लस्टर डब्ल्यू का. So first you have to update your path virtual environment and then import the package in your PyCharm. Okay. So we'll be looking at that as well. So आज तो नहीं पाएगा, कल करते हैं. So tomorrow we'll be looking at the cluster W alignment and then we will be performing the blast using our BioPython. Okay. ओके सर. तो आज के लिए you can do कि एक बार pairwise sequence alignment यहाँ से कर लो और एक बार ऑनलाइन सर्वर से करके देख लो बेसिक क्या डिफरेंसेस हैं एंड जस्ट ट्राई टू डू द रिजल्ट इंटरप्रिटेशन बेसिकली एक बार कि सो दैट इट लाइक इट ब्रशेस अप योर हिस्ट्री की कैसे अलाइनमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, गैप पेनल्टीज कैसे, फाइनल स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट. ओके देन सी यू.